Meaning of deck cargo, examples of deck cargo, handling, stowage, securing of carriage of deck cargoes. Of course, from the chief officer's point of view, our main aim is to carry this cargo safely and deliver in the same condition as we loaded. And on top of that, if you see, the deck cargo is more exposed to sea weather because they are unprotected. So little more precautions. Basically, if you have a look how this deck cargo looks like. Of course, it was very common with the general cargo ships, but today also some of the cargoes cannot be containerized, so you carry this on deck. So from here you can make out that how many things we have to, as a chief officer, take care before we accept this cargo, before we load this cargo, planning, and then finally ultimately the securing part which comes into picture. Now, meaning of deck cargo, basically if you see, deck cargo refers to items or commodities stored on weather deck or hatch covers of a ship, and therefore they are exposed to all the factors of nature: sun, wind, snow, ice, sea, spray, and all that. And below deck cargoes are unaffected by the elements of weather, which provides a level of assumed security completely opposite to what the weather is associated with the deck cargoes. Now, before we start loading deck cargoes, before we start accepting, we have to see that they are not going to get affected by the weather elements, not going to get damaged. So that's the first thing. Sometimes on the ship you are not aware that what the shipper wants. Whether shipper is expecting under deck stowage, or sometimes some of the cargoes, of course, they also know. So we'll see what type of deck cargoes we basically carry on deck. So all these cargoes are exposed to weather. Their packaging should be fully resistant to weather, and content should not be damaged by the exposure. But not that tomorrow the shipper agrees that this cargo will be carried. Of course, it's written on the BL that it is carried on deck, so they know they are exposed to the weather conditions. And deck cargo, because of their very location and means by which they are secured, will be subject to velocity and acceleration stresses greater in most instances than the cargo stored below deck. So acceleration is maximum, the highest point. And the combined effects of this wind, sea, swell can be disastrous. So hence, stowing, lashing, and securing of these cargoes require a special attention to method and to detail if these risks are to be taken care of. Now, what are the examples? What cargoes we carry on deck, or what we are supposed to carry on deck or under deck? First of all, if you see these IMDG cargoes, certain cargoes are not allowed under deck. So that's why they have to be carried on deck. So they are always allocated deck stowage away from the crew quarters in accordance with the code. Cargo is likely to emit flammable gases stored on deck in open spaces. And even in the event of spillage, the accompanying documentation should be consulted, and if persons involved in clear-up procedures should be issued with protective clothing. So you see, if we carry these cargoes, IMDG of course will be dealing with this topic entirely in detail. But as a deck cargo, if I am carrying, then a lot of things involved: emergency measures, protective clothing, anything else before we approach this spillage or anything else. Special attention in the event of spillage. Some chemicals react with water or air and become harmful, toxic effect. Containers, of course, we will say containers today, they are carried on container ships. Not all the time. Yes, of course, cellular container ships are there, but sometimes you feel other cargo ships, small ships, they also carry few containers on deck. So it's a cargo, whatever type of cargo they get, they will carry. Now their securing will definitely be different from how we secure cargoes on these cellular container ships.
So there they become like a deck cargo. It may be a containers. Now it is again to be secured like as the typical general cargo with dunnage, wires, or chains or whatever we have. And again, gases carried in cylinders, various sizes, very common. Even as a store we carry on the ship, empty bottles for returning. So many things come into these deck cargoes. Livestock, of course, most livestock would be carried on sheltered part of the upper decks along with shipper's instructions for feeding and hygiene. And very common is your steel or the plant or project cargo. Now this project cargo is very common. All type of ships, even sometimes container ships may be given this project cargo to be carried. Variety of forms, bulldozers, railways, and they are of course their stowage. Now few of the examples, if you see these heavy boilers, these are all project cargoes. Railway engines, railway bogies. Today also I was reading India is exporting to Sri Lanka under some agreement. So the ships are to carry all these things to Sri Lanka. An example you can decide, you can see that if you have to carry in this monsoonic weather where the Arabian is rough. So weather also becomes another important factor here, how this cargo is to be secured. Now, whereas the storage is concerned, so first thing comes in mind, all cargo should be stored, secured in a manner that will avoid exposing the ship and the persons on board to unnecessary risk. This is what we have seen in CSS code. That's the main aim of loading and securing cargo, is that everybody is safe. Ship is safe, cargo is safe, and the people are safe. Now, the safe storage and securing of cargo depends on proper planning, execution, and supervision by properly qualified, experienced personnel. So your job also becomes easy if you have a qualified people. He can understand your language, you just give him few hints so he knows what to do. Instead, if you have somebody who has not done this job, so how difficult it becomes to explain him. So every time you will be running around. So that's why these other second officer, third officer, so they also go through this same training, same studies. And advanced planning, exchange of information, continuous ship-to-shore communication, especially for these deck cargoes, heavy lift cargoes, is very, very important. I will say for all cargoes today, even containers, the communication is a key for the progress. That how fast we can load and how fast we can, plan the things and execute the things. Safe securing of deck cargo should be checked by competent person before the vessel proceeds on passage. Of course, we all do that. And again, the captain or the master responsible for ensuring it's correctly stored, adequately secured for the intended voyage. And areas on deck which are not to be used for cargo storage should be clearly marked. Now, यहाँ पे भी थोड़ा सा when we are planning these cargoes, so there it comes that how we plan, we mark the area, we see that area is clear, has got enough strength, and then there is a proper access to the people, that in normal running of the ship that we can go fore and aft, and even in emergency that nothing is hidden or nothing is basically obstructed by this cargo. These are the most important things. Loading to of course we will do, securing bhi ho jayegi, but suppose it is done at a wrong place and then we face a problem. Now handling, stowage, securing and carriage of these cargoes. The very first thing, adequate stability. Now when you are loading this cargo higher up on decks or hatch covers, naturally the stability will be affected. And if you imagine you are loading 100-ton, 200-ton boilers, earth movers, where the stability will go. That's why the very correct information regarding the cargo and again the weight, so that I can calculate properly that how my stability will be during the voyage. And also bear in mind, some cargoes such as timber can absorb up to 1/3 of their own weight of water. Timber mein ye is another problem. Yes, it becomes heavy. Suppose the timber is dry. If you load a dry timber and then it absorbs water, so naturally there's more weight on deck coming.
And also consumption of water, fuel, stores everything from down below, so double negative effect for the stability. Now, criteria basically very simple when carrying deck cargoes. Sometimes they can put you in question also that what are the basic criteria when we are carrying deck cargoes, and otherwise also I should have in my mind that what I am going to take into account, what factors will be in there in my mind. So first is adequate provision must be made for safety of crew when passing from one part of vessel to another, not that we load such a odd shaped cargo and total passage is blocked. And when carrying deck cargo which prevents access for crew to their quarters along or under the deck walkway. Sometimes it happens, you load cargo in such a way that, okay, never mind, the deck is covered, but we can walk over the cargo. Very common for timber. You see this timber when we load on deck, the deck is completely covered. Right from port to starboard up to extreme bulwark and right from forward to aft. So there we sometimes, of course, as a safety or as per the timber code, we are supposed to make a walkway over the cargo. So you make that walkway over the cargo to go from forward to aft or aft to forward. Steering arrangements must be effectively protected and from damage, and in any event of breakdown in the main steering arrangements for emergency gear. Of course, nowadays most of the ships, the bigger ships, you see that you have the access to the steering gear from the engine room or from the underdeck passage, but smaller general cargo ships, the access to this steering gear is only from deck. And if that particular area is blocked, so for you all the time these things, because when we are for examination, we don't assume which ship we are on. So I have to keep these minds. Yes, the steering gear arrangement must be effectively protected and should be clear. Access should be all the time there. And where the cargo is stored on hatches, these are to be properly battened down, sufficient strength. Not that we have the cargo totally loaded and then we forget and then we say, "Arey, what to do?" The hatch covers, of course, depends on the type of ship. Either they are hydraulically operated or lift on type. But lift on, lift out type is more dangerous because they are not secured at all. So the cleating becomes most important. Next important thing, decks to be of sufficient strength for intended cargo, and if necessary, they should be strengthened by toming or shoring underneath. Of course, general cargo ships, this used to be common. Decks used to be, the main deck used to be very weak. So sometimes you put a thick timber underneath on the twin deck level just to strengthen it. And again, there is a point load sometime. The cargo, the entire cargo may not be resting, which we have seen initially when we are doing this securing by CSS and CSM that I have shown you. Yes, the point load is very important. If the cargo is not covering or it's covering only a smaller area than the load density. And again, the securing deck cargo to be well secured, if necessary, protected from weather, the heat of sun. Sometime you may need to cover it. And also the visibility must not be high enough to interfere with the navigation of the ship, particularly obstructing the lookout duties or preventing access to working spaces of the vessel. And when we load these, huge things, they create a lot of windage area. Large cargo parcels could increase the windage experienced by the ship and cause excessive leeway effects. And such effects need to be monitored again by the navigation officers. So in case there is, of course, like container ships, windage area is very easy to understand, like containers or these car carriers. Sometimes their handling is entirely different. They behave like a sailboat. So it's possible sometimes we load very high deck cargo which has got a lot of windage area. So the ship will definitely get affected. During loading, again, chief officer is advised to ensure the decks are not overstressed by point loading and the supporting structures about the loaded area are adequate to cater for the size and volume of the load. So again, we know that we have seen enough weight distribution by dunnage, thick dunnage.
And in case we are storing containers on deck or non-container ships, storage of containers is common. Sometimes even as a stores, or small ships, very many times they are offered these containers to be carried. So these storage of containers on ships which are not specially designed and fitted for the purpose of carrying, they should be stored fore and aft, should be stored and secured so as to permit safe access for the personnel, and should not extend over the ship sides. Adequate support should be provided when containers overhang hatches or deck structures. So if you are carrying on hatch top, of course, previously before the cellular ships came, so we used to have these what we call container oriented ships, general cargo ships with the hatch covers designed for this load, and they were again some sort of fittings were there. So lashing was of course with chains and all, not with what we do today on the cellular ones, and should at no time overstress the deck or hatches on which they are stored. That's most important because hatch covers get deformed. It's difficult to see visually, but you come to know only when the water starts leaking. Bottom tier containers stored on timber of sufficient thickness to transfer the stack load evenly on the structure of area. Again, using locking devices, cones, whatever system you have. Of course, nowadays you have CSM, even for general cargo, they will also guide you. And they mention there is CSS in case you are loading containers on non-cellular ships. And there is a question also, I think, in your past papers, that how will you secure containers on a non-cellular ship? So the sketch is not difficult. I think these sketches are given in the CSS code also. And secure to protect them from sliding, tipping. Hatch covers carrying containers should be secured to the ship. And lashing consists of wire ropes or chains with enough strength and elongation ability. And again, timber shoring and wire clips and lashing kept under equal tension. These are the very basic things that in case if I have to carry containers on a non-container ship, that how will we secure and how we will take care other than the other cargoes. So here also sometimes comes the heavy cargoes which will cover in heavy lift, that when we are loading up heavy lift on deck, then there are more things to be seen. So this was just the general precautions for your deck cargoes. Now with deck cargoes we come to the next is your timber, which is also a part of deck cargo. Now timber of course loaded under deck and on deck. So when it is coming on deck, then it becomes little bit, it creates little bit extra hazards. So for that purpose, I think I'll show you a few slides which will basically make this understanding very clear, that how these deck cargoes are basically, for the timber cargoes are basically carried. Now these are few checklists, of course. Today you have all these checklists in your SMS manual. Now if you see this, the first thing is timber loading, or I would say for all cargoes, if you are loading in US, Canada and all that, these guys, the stevedores come and check your cranes. So that also I will cover up in cargo gear, what all precautions we have to take. But the shore people come and check your cranes very thoroughly, that all your safety devices, safety cutouts, everything is working properly, sheaves, everything is proper, blocks. Because when they want to handle, so they want to make sure that all these things are in good working condition, because they don't want accident, and they are bothered about their safety first and then the ship. So you can see this. So that means on the chief officer, the first load comes is the cargo gear, that it has to be in good condition. Of course, everything will be tested, annual examination all carried out, but still maintenance of cargo gear is a big job. And thanks to containerization, bigger ships, there you find ships are becoming gearless and less headache. Otherwise, handling these cranes, you have 5-6 cranes. You can see that their wires, greasing, lubrication, everything becomes a very big job. And this is today
slightly less jobs. Now this again hatch covers opening, closing. A lot of ports have got different regulations. US, Canada, even European ports, sometimes they say the stevedores open, close the hatch covers, and sometimes the shore people. So this, please check up when you are working with these guys. Of course, this before cargo operation starts, the meeting takes place. The stevedores, the foremen, and all that. These people will come and tell you what are the regulations. They'll make you aware that we are going to do this. So this becomes a more problematic if they open the hatch covers. So our hatch covers, we know how they cover, how they close, what are the problems. So if these guys operate, you can very well understand. But anyway, depends. Their regulation is their regulation. So we have to comply with this. Now you can see this, how this timber in some of the ports, Canadian ports and all, it comes by river. How they make it a bundle, and then these tugs tow and bring it alongside. And of course, again slinging, and then putting normal, your timber carriers are nothing, they're just handy size bulk carriers. Can be used for bulk cargo, can be used for timber. So their holds are also like bulk carriers. So this is how your under deck loading goes. And normally they pick up these bundles and then they lay, and then they open these wires. Normally these wires they can cut so that there is a leveling. They can level this whole thing. सर ये पानी में तैर रहे थे सर क्या ये? या तभी आपने जो पिक्चर दिखाया. हाँ जी. हाँ ये सर. कुछ नहीं होता. टिम्बर कार्गो पानी में मतलब सर में होता है, तैरता रहता है. That is the best way of transportation. Actually अगर आप देखिए, these are the big tree trunks. टिम्बर की अगर जो कॉस्ट है, टिम्बर की कॉस्ट ही तब बढ़ती है when this timber is seasoned. It's called seasoning of timber. ये तो quite common है कि जो हमारे इवन इंडिया में भी, यहाँ पे भी, द गाइज हु आर लिविंग इन दिस हिली एरिया, हिमाचल जे के साइड, तो टिम्बर को काट के, दिस ट्रीज को काट के पानी में डाला जाता है, एंड देन फिर इसको बाहर निकाल के सुखाया जाता है, फिर अगेन पानी में डाला जाता है. सो यहाँ पे तो ऑफ कोर्स दे आर नॉट डूइंग द सीजनिंग, बट नॉर्मली जितनी टिम्बर सीजन होगी इसके अंदर ऑयल होता है अदरवाइज. सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बिल्ट हाउसेज. तो आज अगर अपना घर बनाने जाओगे, समटाइम यू मेक द डोर्स, विंडोज, चलो 6 महीने के बाद बेंड हो जाती. तो वहाँ से आपको पता लगता है कि उसके अंदर जो सीजन, अगर वो टिम्बर सीजन नहीं है तो वो टेढ़ी हो जाएगी, कि उसके अंदर ऑयल होता है. तो उसको सुखाने का एक ही तरीका, पानी में डालते हैं, फिर उसको उठा के किनारा में रख देंगे, फिर वो सूखेगी, फिर उसको पानी में डालेंगे. तो लेकिन ये अपन लोग मतलब केयरफुल रहते हैं कि ऊपर से स्नोफॉल होगा, पानी वानी गिरेगा तो ऊपर का वेट मतलब बढ़ेगा. अब पहले से हमसे गीला करके अगर रखेंगे तो फिर तो सर सोचना ही क्या मतलब बारिश के बारे में. करेक्ट. फिर तो देखो, फिर तो हमें आसान हो गया ना, कि फिर तो ये ऑलरेडी टिम्बर जो है ऑलरेडी गीली है, इट्स ऑलरेडी अब्सॉर्ब, जितना इसने पानी लेना था ले लिया. अच्छा, ओके. अब प्रॉब्लम क्या आती है कि सी ऑल द टाइम, ऑल द पोर्ट्स, इट इज नॉट डन दिस वे. दिस इज मे बी फ्यू ऑफ द पोर्ट्स. सो लाइक आई यूज्ड टू लोड इन नेपियर, तोरंगा इन न्यूजीलैंड. वहाँ पे दिस थिंग्स कम बाय द शोर साइड, बाय दिस ट्रक्स, ट्रेलर्स, बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं वो इसको लेके आते हैं. समटाइम इट इज़ ड्राई टिम्बर. तो जब किनारा में पड़ी रहेगी तो हमें पूरी कंप्लीटली ड्राई होगी, फिर देर आर चांसेस. बट इवन देन वाटर ऑब्जॉर्प्शन का मतलब ये नहीं है कि इट कम्स टू द डेंजरस लेवल. अगर आप टिम्बर कोड में हम जब जाएंगे, आई विल सी दैट, आई थिंक आई हैव रिटन देयर, उन्होंने हर टिम्बर की क्वालिटी दी है कि वो कितना पानी ऑब्जर्व करेगी. एंड अब आप रफली कैलकुलेट भी कर सकते हैं. इफ़ यू नो द टनेज, हाउ मच टनेज यू हैव लोडेड ऑन डेक, तो इट इज़ नॉट इन थाउजेंड्स की 500 या 1000 टन ऑफ वेट नहीं इंक्रीज हो जाएगा उसका, इतना नहीं होता. यस, थोड़ा सा है कि इंक्रीज होगा. टिम्बर अगर एब्जॉर्ब करती है वाटर तो यस इट इफेक्ट्स लिटिल बिट, बट नॉट. मैंने अगर 2000 टन टिम्बर डेक पे लोड किया तो 3000 टन बन जाएगा कार्गो. नो, नॉट सो मच वाटर. सो दैट वी विल सी व्हेन वी कम टू जस्ट हैव अ लुक. तो आपके सामने ही आएगा. अभी तो चलो हम अंडर डेक कर रहे हैं,
कि अंडर डेक लोड कर रहे हैं हम इसको, हाउ इट लुक्स लाइक। तो पानी का इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। जो एक्चुअली टिम्बर है जितनी अच्छी जो आप कह रहे हो हमारे ये सागवान या बर्मा टीक या ये दूसरी देआर एंड ऑल दीज ट्रीज हैं, जितनी एक्सपेंसिव लकड़ी है उसकी वैल्यू तभी बढ़ती है जैसे जैसे उसको जितना सीजन किया जाता है, पानी में डाल के सुखाओ, फिर पानी में डालो, फिर सुखाओ, इट टेक्स ईयर्स, फिर उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। ओके सर। Yeah. Now you see this, now it is loaded into the holes. अब आप देखिए अभी हमारे होल्ड का साइज और इसकी जो लेंथ्स हैं वो वेरी करेंगी। अब हमने यहाँ पे इस वक्त इफ आई एम लोडिंग, चलो आपने प्लान बना लिया कि ओके भी हमने एवरीवन हैज द अल्टीमेट थिंग कि भी स्पेस फुल होनी चाहिए। ना एक तो स्पेस है, सेकंड प्रिकॉशन व्हेन यू आर लोडिंग अंडर डेक, मेन थिंग इज दैट देयर शुड बी नो वॉइड्स, नो स्पेस। उसका क्या इफेक्ट है कि चलो स्पेस वाइज तो है ही है, स्पेस तो हमने यूटिलाइज करनी है, सेकंड अगर वहाँ पे वॉइड्स हैं, स्पेसेस हैं, देन देयर आर चांसेस ऑफ कार्गो शिफ्टिंग। अगर कहीं पे भी गैप रह जाता है तो व्हेन द शिप इज मूविंग अगेन आई विल फाइंड अ प्रॉब्लम। एंड कहीं साइड पे स्पेस रहेगी तो कार्गो उस साइड चला जाएगा, लिस्टिंग की प्रॉब्लम। तो अंडर डेक के लिए अदर देन योर ऑल द स्ट्रेंथ, टोटल वेट, स्ट्रेंथ की तो प्रॉब्लम आती नहीं, दिस कार्गो इज नॉट सो हैवी। डैमेज, कहीं फ्रेम ना डैमेज हो, कहीं साउंडिंग पाइप, एयर पाइप्स, सो मेनी थिंग्स आर पासिंग थ्रू द होल्स। सो अब आप चीफ ऑफिसर हो तो आपकी गाइडेंस रिक्वायर्ड फॉर द यंगर ऑफिसर और द डेक टीम कि भैया थोड़ा ध्यान रखना, देखते रहना। एंड एज अ ड्यूटी ऑफिसर ऑफ कोर्स वी आर ऑल्सो अवेयर, हम अपने साथ जो बंदे हैं, यस व्हेन दे आर लोडिंग normally these guys are, I mean I can't say stevedores are not same in all the ports. सो डैमेज की पॉसिबिलिटी रहती है कि साउंडिंग पाइप होगी, लैडर्स होगी, कहीं पूरा का पूरा बंडल मारा तो उसी को ही तोड़ दिया। बट मेन एम जो है वो होना चाहिए कि स्पेस यूटिलाइजेशन एंड गैप नहीं रखने ताकि कार्गो शिफ्ट ना हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो बंडल्स हैं कि वायर जो है इसको काट देंगे सो दैट आप इसको एकदम लेवल कर सको। सी लाइक दिस दे विल कट द वायर्स एंड फिर इसको इवनली बिछाते जाएंगे, आपकी स्पेस भी पूरी यूटिलाइज हो गई एंड नो चांसेस फॉर कार्गो टू सेटल एंड क्रिएट अ एनी शिफ्टिंग और समथिंग लाइक दैट। सो ये भी है कि यस जैसे जैसे हम लोड करें, ठीक है, उसने बंडल उठाया, काट के उसको सीधा उसको बिछाते जाएंगे, इवन लोडिंग हो जाएगी हमारी। सो दिस इज बेसिकली अंडर डेक प्रिकॉशन जो आपने लेनी है। सो एज द things keep coming up, you see your holds, तो यहाँ पे ना लैशिंग की जरूरत है, only thing is just a little bit of eye on that it is properly stored, no gaps. And sometimes you put this even your grabs instead of keeping on deck, उसको भी अंदर डाल देते हैं। So little bit of space, जैसे अभी इसमें है कि यस ये आपकी स्पेस थोड़ी खाली रहेगी, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड अनदर थिंग इज हैच कवर्स, ये भी नहीं है कि होमिंग से ऊपर लोड कर दिया और बाद में हैच कवर ही नहीं बंद हो रहा, तो ये लेवलिंग भी है। ये तो आई थिंक टुडे एवरीवन इज वेरी वेल अवेयर, स्पेशली इवन ऑन कंटेनर शिप्स आल्सो। इफ यू सी बाई चांस अगर आपने ज़्यादा हाई क्यूब लोड कर दिए देन ऑल्सो द हैच कवर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो एवरी कार्गो यू हैव दिस प्रॉब्लम दैट you know your hatch covers are whether flush or sometimes the beams are extending slightly below the coamings, फिर हमको कार्गो उसी लेवल पे स्टॉप करना पड़ेगा। नाउ ये तो हो गई अंडर डेक, नाउ कम्स द प्रिपरेशन फॉर लोडिंग ऑन डेक। डेक के लिए लोडिंग के लिए ऑफ कोर्स बिफोर वी कम ऑन डेक, सो इसके लिए सबसे पहले तो सारा का सारा लैशिंग मटेरियल, शिप स्क्रू दे हैव टू टेक आउट। जहाँ पे भी हमने रखा फोरपिक स्टोर या मास्ट हाउसेस में, जहाँ पे भी क्रेन हाउसेस पे, सो वी स्टार्ट टेकिंग आउट एंड लेइंग इट अप। बिकॉज इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव टू स्टार्ट लेइंग और स्टार्ट रिगिंग दिस लैशिंग मटेरियल, साथ ही साथ हमें लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे तो वो बात है नहीं कि श्योर पीपल विल डू द लैशिंग, यहाँ पे शिप स्क्रू है, उसी ने लैशिंग मटेरियल भी निकालना है, रिग भी करना है एंड लैशिंग भी लेनी है। तो इट्स अ बैक ब्रेकिंग जॉब कंटिन्यूस, बिकॉज साथ साथ लोड करते जाएंगे, साथ साथ
आपने उसकी लैशिंग की वायर्स भी लगाते जाना है। एंड लैशिंग मटेरियल के बाद सबसे पहले आ जाता है दीज आर कॉल्ड द अपराइट्स। सो ये जो आपने देखे अपराइट्स, दे आर नॉर्मली इफ यू आर नॉट कैरिंग टिम्बर रेगुलरली, फिर हम इसको नीचे बिछा देते हैं। सो दे आर बेसिकली लाइक इंटरकनेक्टेड विद दिस वायर्स स्नॉटर्स के साथ, एंड क्रेन से हम 3-4 को एक साथ इकट्ठा उठा सकते हैं। बट दे आर हैवी, स्टील के हैं, डेंजरस। आई विल नॉट रिकमेंड, आई डोंट नो फोटो में जैसे ये नेवर स्टैंड क्लोज, बिकॉज वायर टूटी तो ये धड़ाम से आके कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी डैमेज हो सकता है। सो इनको रिग करना, इनको अपराइट्स को इरेक्ट करना इज ऑल्सो अ बिग जॉब, so especially with shortage or the less number of people on board, so this also becomes a little, it is a serious job, dangerous job I will rather call it. हाँ ठीक है, एक बार इरेक्ट हो गए देन यू हैव द लॉकिंग पिंस, फिर आप उसको आराम से लॉक कर सकते हो, देन दे रिमेन इन पोजीशन एंड देन इट इज़ ओके। बट इनको इरेक्ट करना एंड लोअरिंग, अब समटाइम यू हैव टू लोअर इट ऑल्सो, कि ठीक है पहला स्ट्रिप वॉइस में या मेंटेनेंस के लिए, और समटाइम द सेम शिप इज कैरिंग बल्क कार्गो, टिम्बर नहीं कैरी कर रहा, अगर मेंटेनेंस आ जाए तो अपराइट्स को हैंडल करना अभी थोड़ा सा स्पेशल थिंग है। अब आ गई आपकी ऑन डेक लोडिंग। ऑन डेक लोडिंग व्हेन यू सी, तो इसके लिए तो आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा, व्हाट ऑल थिंग्स वी शुड चेक। एनीथिंग कम्स स्पेशल इन योर माइंड कि यार बिफोर आई से कि ओके यू कैन स्टार्ट डेक लोडिंग, डेक पे लोडिंग करना शुरू करें हम। सर सिक्योरिंग क्लीनलीनेस, सिक्योरिंग किस चीज की? देखो सिक्योरिंग ये जो साइड्स में है सर, स्टेंशंस, सर लोड डेंसिटी, स्टॉन्शन अपराइट्स की, ठीक है वो तो सिक्योर हो गए, ठीक है कर दिया। ये आपकी मेन डेक है, हैच कवर्स हैं। तो सबसे पहले मेन थिंग है कि यस व्हेन दे स्टार्ट लोडिंग ऑन हैच कवर्स, बिफोर यू टेल देम यस वी मस्ट मेक श्योर द हैच कवर्स आर बैटन डाउन, सब तरफ से क्लीट्स जो आपने लगानी है, तो उसके बाद तो हमें चांस ही नहीं मिलेगा। हैच कवर्स आर प्रॉपरली क्लोज, बैटन डाउन प्रॉपरली, एंड देन लेट देम लोड ऑन डेक। सो वैसे तो पहले ये वेल्स को भरेंगे, दीज आर कॉल्ड द वेल्स। सो ये मेन डेक जो है इस वेल को हैच कवर के लेवल पे लेके आएगा, ये देखिए। एंड सेकेंड थिंग, नाउ यू नो व्हेन ही इज कवर्ड अप दिस मेन डेक, अब ये आपका साइड का बुलवर्क है, दिस इज द एक्सट्रीमिटी ऑफ द आपकी शिप की। अब जब उसने यहाँ से पूरा यहाँ तक लोड करना है, तो आई हैव टू सी सर्टेन एरियाज कि यार कहीं पे साउंडिंग पाइप्स, एयर पाइप्स, नॉर्मली दे आर इन द मास्ट हाउसेज, जो प्लेन हाउसेज क्रॉस डेक्स हैं वहाँ पे होती है। चाहे कोई भी FFA फायर फाइटिंग का कुछ भी इक्विपमेंट है, वो तो ऑफ कोर्स इन दी शिप्स दे आर गिवन इन सच अ वे दैट यू कैन लोड ऑन डेक एंड ये क्लियर रहेंगे। वो भी क्लियर होने चाहिए, हैच कवर्स भी क्लोज होने चाहिए ठीक तरह से, उसके ऊपर उसका लोड भी आने वाला है। एंड देन हमने लैशिंग भी साथ साथ ही लगानी है। अब यहाँ पे जो ये जो आपकी मेन डेक दिख रही है, यहीं से भी स्टार्ट रिगिंग दिस फुट वायर्स, इसके ऊपर यहाँ पे आईज रहती हैं, वेरी क्लोज बाय यू हैव थिक आई पैड्स वेल्डेड ऑन द मेन डेक बोथ साइड्स पे। एंड बिफोर दे स्टार्ट लोडिंग वी हैव टू पुट दिस फुट वायर्स, हम इसको लगा के बाहर हैंग कर देते हैं, एंड फिर हीविंग लाइन सर यहाँ पे पकड़ लेंगे ऊपर। सो जैसे जैसे कार को ऊपर जाता जाएगा, हम इन वायर्स को हीविंग लाइन को ऊपर लेते जाएंगे। सो दिस इज अगेन अ फर्स्ट जॉब टू मेक थिंग्स रेडी बिफोर दे फिल अप दिस डेक। उसके बाद नहीं कि कार को ऊपर आ गया, आप इसकी जो लैशिंग है, आईज आर वेल्डेड ऑन दिस आपका डेक स्ट्रिंगर पे, तो यहाँ से वायर शुरू होनी है, फिर इस वायर ने पूरा का पूरा इसके ऊपर से जाना है। तो इसलिए सारी वायर जो हैं आगे से पीछे तक, द क्रू हैज़ टू रिग अप ऑन पोर्ट एंड स्टारबोर्ड साइड, एंड फिर हम इसको ऊपर पकड़ के रखते हैं। तो ये सारी प्रिकॉशंस हैं कि अगेन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सी वर्किंग ऑन द शिप इवन इफ यू हैव नॉट डन दिस शिप इज़ नॉट डिफिकल्ट, एक वाइज इनफ, वन वाइज इज इनफ, क्रू इज ट्रेन, दे नो, हम उसको देख के सब कुछ सीख जाएंगे। बट बेसिकली यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन के लिए आपने ये शिप देखा नहीं है, लोडिंग देखी नहीं है, तो इसको विजुअलाइज करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो अंगद हैज डन दिस लोडिंग, सो ही नोज एवरीथिंग थॉरोली कि हाँ क्या क्या वर्क होता था, क्या क्या काम होता है। आप सो ये फ्यू पॉइंट्स हैं कि यस अगर बाई चांस चाहे ओवरऑल्स हो चाहे रिटर्न्स हो,
सो अगर आपने एक बार ये स्लाइड्स देख ली हैं सो यू हैव एन आइडिया कि ठीक है सर हमने लोड करना है अंडर डेक, ये प्रिकॉशन लेंगे ऑन डेक. सर्वेयर्स आर इंटरेस्टेड टू नो दैट यार even if you are posted on these ships, so can you handle, can you operate? A few terminology है this, I mean if you ask me nothing difficult. तो एक किस्म का एक फियर जैसा आ जाता है कि वो टिम्बर कैरियर पता नहीं क्या स्पेशल लैशिंग है यार. सो इट इज़ ओनली दीज, इट्स इफ यू आस्क मी इट्स अ बेसिक सीमैनशिप. यार डेक में कार्गो लोड कर रहा हूँ तो आई विल जस्ट इंश्योर दैट ऑल द एरिया जो चीज़ें मैंने देखनी हो क्लियर, एंड लैशिंग जो है वो हमने रिग करनी. अब ये नाउ यू सी दिस, these are the wells. इसने यहाँ मेन डेक को भर दिया. अब ये डेक लेवल पे आएगा, फिर ये दे विल स्टार्ट लोडिंग ऑन द हैच कवर्स आल्सो. अब ये लेवल कार्गो जो है ऊपर आता जाएगा. अब मैंने हैच कवर्स को सिक्योर कर लिया जो भी, ऑफ कोर्स वैसे तो ये कवर्स हिंज पे हैं तो इतनी इसकी प्रॉब्लम नहीं है. नॉर्मली हैंडीसाइज बल्क कैरी जो है द हैच कवर्स, द हाइड्रोलिक हैच कवर्स विच आर हिंज्ड, बट फिर भी जितने भी 2, 4, 6 क्लीट्स हैं at least for examination purposes, sir, we have to secure. We will secure the hatch covers, see all these other items are clear, and आपकी जो एयर पाइप, साउंडिंग पाइप, these are the crane houses. तो यहाँ पे थोड़ा गैप रहता है बीच में, so you can go down and even take the soundings. साउंडिंग पाइप तो क्लियर होनी चाहिए ना, बिकॉज वॉइस में मैंने देखना बैलास्ट टैंक में तो है नहीं कहीं पानी भर रहा हो, बिल्जिस की क्या सिचुएशन है वो तो हमने चेक करना. अब आ गया आपका कि यस चलो लोडिंग आ गई. व्हेन इट कम्स टू द डेक एंड व्हेन यू स्टार्ट लोडिंग ऑन टॉप ऑफ हैच कवर्स, जब आपका कार्गो ऑलमोस्ट अबाउट हाफ हाइट पे आ जाएगा, देन वी स्टार्ट रिगिंग दिस हॉग वायर्स. सो ये आपकी हॉग वायर्स जो हैं दे आर होल्डिंग इट एंड दे विल जस्ट ले इट ऑन द कार्गो ऑलमोस्ट ऑन द हाफ हाइट पे. ये फ्रॉम पोर्ट टू स्टार्बोर्ड दे आर जस्ट ज्वाइनिंग दिस अपराइट्स. इनमें कोई टर्न बकल कुछ नहीं, जस्ट ये शैकल लगे हैं. तो इन शैकल्स पे आपने वायर लगाई, आई मीन आईज हैं ऑन दी स्टॉन्शंस के ऊपर आईज हैं, वहाँ पे शैकल के साथ आपने इसकी स्लिंग की आई लगा दी है. दूसरी तरफ जाके पोर्ट एंड स्टारबोर्ड को जस्ट हैंड टाइट. सो ये वायर की लेंथ ही उतनी होती है, जस्ट हैंड टाइट. थोड़ी सी लूज होगी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस इसके ऊपर कार्गो आने वाला है. तो दिस इज वी आर डूइंग एट हाफ हाइट. सो दिस इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि यार हॉग वायर है क्या चीज़. तो ये तो हो गई आपकी हॉग वायर. अब आपकी सेम दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर द लैशिंग. अब लैशिंग के लिए yes of course it looks, when the ship is brand new, she looks like this. All the lashing material when it is new, even these uprights, stanchions, ये भी सब शाइनिंग है. बट आई रिमेंबर माई डेज कि उसके बाद तो चांस मिलता ही नहीं है ना इनको चिपिंग करने का ना पेंटिंग करने का, बिकॉज लोडेड पैसेज में तो वी कांट एक्सेस देम, and ballast passage में hold cleaning and all the other jobs keep on going and hardly you get any time to maintain your deck. So अगर आप regular timber carrier पे हो तो deck और stanchions totally red हो जाते हैं and it looks, the ship looks very of course dirty, but what to do until unless you got a long voyage and some extra crew just to maintain the deck. तो ये तो आपका नॉर्मल लैशिंग मटेरियल विच वी यूज. नाउ प्लीज रिमेंबर एनी टाइम वी यूज दिस लैशिंग मटेरियल इट हैज़ टू बी टेस्टेड. आप चीफ ऑफिसर के पास सारे सर्टिफिकेट्स की कॉपी भी होनी चाहिए. जो भी आप वायर रिसीव करते हो, टर्न बकल्स, स्नैच ब्लॉक्स, एनीथिंग, व्हाटएवर मटेरियल यू यूज्ड इट हैज़ टू बी टेस्टेड. ये आपके लिए भी एक पॉइंट है कि शिप पे हम क्या करते हैं इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट एग्जामिनेशन के साथ यस आई विल मेक श्योर दैट वी रिसीव ऑल दिस मटेरियल विद टेस्ट सर्टिफिकेट्स. तो सेफ्टी आपके हर आंसर में दिखनी चाहिए. नाउ दिस इज हाउ योर हॉग वायर्स और हॉग लैशिंग्स. नाउ दिस फिगर यू कैन डेफिनेटली वेरी इजीली मेक. दिस इज ऑन द हैच कवर, दीज आर द stanchions or uprights, port and starboard. So this hog wire just joining this uprights port to starboard, so that in case there is a weight comes on when the ship rolls to one side, so इनके ऊपर स्ट्रेस आएगा, वो स्ट्रेस यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा दूसरे वाले के ऊपर. सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ दिस हॉग वायर ज्वाइनिंग पोर्ट एंड स्टारबोर्ड अपराइट्स. एंड लूज इसको टाइट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसके ऊपर और कार्गो आने वाला है. वी पुट इट ओनली एट हाफ हाइट. चलो ये तो हम बाद में भी देख सकते हैं. या दिस इज
how your, if you see from fore and aft, main deck, hatch cover, and this is your hog wire goes. And another precaution when we are completing the cargo, that we make sure that we try to make this cargo a little crown shape, you know, थोड़ा सा इसको ऊपर से crowning कर दें. क्यों? कि when we do the lashing, so you know that your lashing wire is coming from here, main deck से हम lashing wire इसके ऊपर से जाने. So if it is in this shape, तो ये पूरी की पूरा का पूरा कार्गो जो है lashing wires इसको पकड़ लेंगी. So there are no chances of this cargo shifting. The purpose is the lashing wire should basically touch the entire cargo. अब यहाँ पे अगर हम इसको लेवल भी रखते हैं या ये थोड़ा सा बीच में लॉग्स जो हैं नीचे आ जाते हैं, so the lashing wire will not be touching. So the chances of this cargo moving. But अगर हम इसको थोड़ी crowning shape दे देते हैं, then we know that it's a total solid block. अब वो तो थी आपकी हॉग वायर, आपने देख ली हाफ हाइट पे. अब ये जो लैशिंग है, दिस इज व्हेन द कार्गो इज कंप्लीटेड. कंप्लीट हो गया तो वो जो नीचे से फुट वायर्स आ रही हैं वो ऐसे ऊपर आएंगी. ये एक्स्ट्रा चेन्स भी हैं, सेम मेन डेक पे शैकल की हुई है. एंड देन दिस चेन कम्स फ्रॉम पोर्ट साइड एज वेल एज फ्रॉम स्टारबोर्ड साइड. इनमें हम बीच में टर्न बकल लगा देते हैं, तो इनको हमने टाइट करना है. एंड सिमिलरली ये जो है, दिस इज अगेन you are rigging a chain block here for putting another what we call the wiggle wire. Now ये जो wiggle wire है ये आपको कैसे दिखेगी, like this. इस साइड से हमने फुट वायर ऊपर उठाई या उसका लूप बना के उठाया, यहाँ पे स्नैच ब्लॉक लगा दिया, स्नैच ब्लॉक स्नैच ब्लॉक स्नैच ब्लॉक. इस तरफ भी इसी तरह से नीचे से फुट वायर आ रही है, उसमें स्नैच ब्लॉक. एंड देन यू पुट दिस टू कंटिन्यूस वायर्स, व्हाट वी कॉल ड्यूल कंटिन्यूस वायर्स और wiggle wire like a shoelace. एग्जैक्टली लाइक अ शूलेस की तरह आप डालते हो. फिर इसके एंड्स को आप खींचोगे तो सारी की सारी वायर जो हैं इनको भी टाइट कर देंगी, एंड साइड से ये भी टाइट हो गया. सो योर कार्गो कैन नॉट मूव एनीवेयर. सो दिस इज अ वेरी टिपिकल वे ऑफ लैशिंग दिस टिम्बर कार्गो बाय पुटिंग दिस विगल वायर. सो ये विगल वायर भी है इन केस व्हेन वी आर लोडिंग कार्गो अबव द हैच कवर्स. सो मोस्टली टिम्बर कैरियर ऑफ कोर्स वी लोड दिस कार्गो. तो पहले तो हमने सब लैशिंग की तैयारी कर ली, उसके बाद हाफ हाइट पे हॉग वायर्स लगा दी ज्वाइनिंग पोर्ट एंड स्टारबोर्ड अपराइट्स. एंड देन व्हेन वी फिनिश द कार्गो, देन जो वायर नीचे से हमने पहले लगा के रखी थी, हीविंग लाइन के साथ बांध के रखी थी, उनको हम उठा के ऊपर लेके आते हैं. एंड देन वी पुट दिस स्नैच ब्लॉक्स एंड देन वी पुट दिस विगल वायर. फाइनली आपकी जो फिगर है, आपकी जो कार्गो फ्रॉम टॉप, इफ यू सी, इट इज़ वेरी नाइसली सिक्योर्ड with this whatever 20-22 mm wire जो भी आपका securing manual कहता है. The securing manual gives you the size of these wires, turnbuckles, shackles, सबका safe working load या MSL देगा कि भी ये आपने यूज़ करना है. So they have done the calculation कितना लोड आने वाला है and किस साइज की वायर आपने यूज़ करनी है. So it will be given in the CSM. And then finally basically you proceed. अब आपने शिप लोड कर लिया तो इट विल लुक लाइक दिस समथिंग. नॉर्मली योर गैंगवेज आर आफ्ट, और वी कैन यूज द शोर गैंगवे आल्सो, डिपेंड्स ऑन द पोर्ट्स. नाउ यू कैन सी दिस कार्गो ऑलमोस्ट क्लोज टू योर ब्रिज फ्रंट. एंड समटाइम you can load in steps also, you can go up, otherwise we make a ladders, aluminium या wooden ladder जो है बना के we can climb onto this and then walk across. So फिर हमें अब एग्जामिनेशन के लिए तो कि yes, personal protection के लिए कि sir we will make a walkway on top, but otherwise we can easily walk on top. So this is how your ship looks when she comes alongside or on completion of loading. So they have done the loading and now she comes like this. So आपके uprights, these are basically your stanchions. Normally term is uprights. 3 मीटर के गैप पे होते हैं, every 3 meters, and then halfway you secure them यहाँ पे. and ये आपकी इस मेन डेक से ये चेन्स या जो वायर्स हैं, they will go on top over the cargo from both the sides and then you tie up.
चलो ठीक है, दैट्स ऑल। तो आपके लोडिंग ऑपरेशंस बेसिक। हाँ जी सर, जो ये वायर हाफ राइट से जो मतलब जो जा रहा है ना, ट्रांसवर्सली जो वायर जा रहा है, तो उसको सर उसको मतलब रास्ते में अगर थोड़ा ढीला मतलब ढाला हुआ, मतलब ड्यू टू दिस कंजेशन ना, तो सर उसको दोबारा टाइट करने का चांस होता है क्या ये साइड में? ना जो बीच में डाली उसको टाइट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आपने हॉग वायर डाली ना हाफ हाइट पे, उसको टाइट हाँ करने सर। की जरूरत नहीं, उसके ऊपर तो कार्गो आ गया ना, तो वैसे ही टाइट हो जाएगी। अच्छा, उसको टाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं सर, आस्किंग अबाउट द टॉप वायर। या टॉप वाली वायर्स हैं, यस। टॉप वाली वायर्स तो एवरी डे, ये जो वायर्स हैं ये तो हम एवरी डे इट्स लाइक अ नॉर्मल रूटीन लैशिंग चेकिंग जो है, ये तो स्लैक होंगी थोड़ी बहुत। अब इनको टाइट कैसे करते हैं, आपने ये तो पिरो तो दिया थ्रू द ब्लॉक्स। अब एक एंड जो ये दो वायर्स चलती हैं, एक एक तरफ से जाएगी, दूसरी दूसरी तरफ से जाएगी, लाइक अ शू लेस मैंने बताया। तो एक एंड तो इनका टाई अप है, दूसरा आप इसको क्रेन से पुल करते हो। द अदर एंड यू विल पुल विद अ क्रेन, और समटाइम्स सम शिप्स यू हैव अ स्मॉल विंच जिससे आप इसको पुल करके, एंड देन विद अ टर्न बकल और एनीथिंग देयर इज अ लैशिंग पॉइंट देयर, वहाँ पे आप बांध देते हैं उसको। आई विल शो यू इन द अदर स्केच जो दूसरा वाला है। तो ये तो है, एंड तो देन मतलब अगर स्लैक भी होती है तो मैं इसको क्रेन से उठा सकता हूँ। इसको क्रेन से एक एंड को खींचोगे तो सारी वायर्स टाइट हो जाएंगी बीच में। yes, sir। तो बट मतलब इस इसमें दो टाइप की होती हैं लैशिंग, एक तो होती है हॉग लैशिंग, और एक होती है अपनी ये वीगल वायर लैशिंग जो सबसे टॉप में होती है ना? करेक्ट करेक्ट। और ये जो वीगल वायर है ये किसके साथ आ रही है, नीचे से फुट वायर्स आ रही है। ये जो साइड से एक एक वायर आपको दिख रही है जिसके ऊपर चेन ब्लॉक स्नैच ब्लॉक लगा हुआ है, सो ये फुट वायर्स है। फुट वायर्स कहाँ से आ रही है, मेन डेक से। अब मतलब व्हाट हेड आई कवर के ऊपर। सो व्हाट आई यूज टू डू इज कि नीचे जो आपके पास आईज हैं, आपके पास एक स्लिंग है, जैसे इधर भी इसकी आई है, दूसरी तरफ भी आई है। सो दोनों आईज को जो है दो आईज पे लगा दीजिए मेन डेक पे, तो लूप बन गया। अब उस लूप को आप ऊपर लेके आते हैं, ये उस लूप में ये स्नैच ब्लॉक लगा दीजिए। सो इंस्टेड ऑफ सिंगल सिंगल वायर की बजाय आपने दोनों एंड इसके नीचे ही डाल दिए, और इस लूप को आप ऊपर ले आए। और लेंथ उतनी हमने एडजस्ट की होती, पहले से बनाई होती भी, इतनी हाइट चाहिए इसको। या फिर अगर आपने एक्स्ट्रा एडिशनल लगानी है तो समटाइम वी पुट चेन्स ऑल्सो, आई थिंक कहीं पे देखी थी बीच में। सो समटाइम वी पुट दिस चेन्स, ये देखिए ये नीचे से आ रही है मेन डेक से, ये कार्गो के ऊपर आई, इसके बीच में हम टर्न बकल लगाएंगे। समटाइम हम चेन्स या वायर्स जो हैं, एक्स्ट्रा वायर्स भी आती हैं, फुट वायर्स जिसे कहते हैं, उनको हम टर्न बकल से ज्वाइन करेंगे। उसको खाली टर्न बकल से, टर्न बकल्स को टाइट करते जाइए अगर सेलेक्ट होता है, बिकॉज थोड़ा बहुत कार्गो तो सेटल होगा व्हेन द शिप मूव्स। थोड़ी बहुत तो ये कार्गो ही मूव करके सेटल होगा, हो सकता है वायर सेलेक्ट हो, एंड वी हैव द प्रोविजंस विद द टर्न बकल्स टू टाइटन दैट। ओके। Yeah. So this is basically what we actually how the cargo operations or how it looks, but it is yes थोड़ा सा टफ है, बस एक बार काम शुरू होगा तो कंटिन्यूसली इसने चलना है। साथ साथ ये तो है नहीं कि जैसे कंटेनर वगैरह शिप्स का कि चलो शोर गैंग्स आर देयर, चलो उन्होंने लैशिंग लेनी है, अब यहाँ पे लैशिंग मटेरियल भी हमने देना है, लगाना भी है। हो सकता है सम पोर्ट्स सम स्टीविडोर्स देयर में भी उनकी टर्म कंडीशन हो कि दे विल हेल्प और they may do the lashing but the crew has to give the lashing material। तो यही बाद में हमने खोल के फिर वापस स्टोर में रखना है। अब इसी मटेरियल को देखते हुए बिफोर आई गो टू द थ्योरी, अब आप यहीं से देख लीजिए कि एज अ चीफ ऑफिसर सबसे पहले मेरा काम तो यस यार ये लैशिंग प्लान, अप्रूव्ड लैशिंग प्लान ये भी होनी चाहिए मेरे पास। एंड सेकंड थिंग जो मटेरियल है उसका भी इनफ स्टॉक होना चाहिए, whether it is this ship or any other ship। लाइक मैंने आपको कंटेनर्स में बताया था, वेरी कॉमन इट हैपन्स कि जब आपका फुल लोड आएगा तो लैशिंग मटेरियल कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब कई बार वायर्स हैं, अब हम इन्हीं वायर्स को अगेन एंड अगेन यूज़ कर रहे हैं, तो एक स्टेज आएगी तो वायर तो ख़राब होगी, कोरोजन भी होगी, बेंड भी हो सकती है, बीच में कोई वायर्स टूट भी सकती हैं। सो वी हैव टू डिस्कार्ड। ये तो है नहीं कि अब, एंड इट इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ वायर्स, प्लस इसीलिए हमारे पास इनफ स्पेयर स्टॉक भी रहता है। 8-10 कॉयल वायर्स के तो रहेंगे ही रहेंगे। यस, आप इसको इन केस अगर आपको चाहिए आप नई वायर काट के बना भी सकते हैं। सम शिप्स दे हैव द क्रिपलिंग मशीन, या आप उसकी हाइड्रोलिक क्लैंपिंग भी कर सकते हैं, बट अदरवाइज ठीक है बुलडॉग क्लिप्स, सो वी कैन मेक दिस। तो ये लैशिंग मटेरियल जो है
अब ये तो है नहीं, अभी जो ड्यूटी ऑफिसर हो तो चीफ ऑफिसर की तरफ ही देखेगा कि सर लैशिंग मटेरियल, एंड उसमें टीम आ गई चीफ ऑफिसर बोसन की टीम आ गई, यहाँ भी देखो मटेरियल है, उधर बोसन हैज़ टू गिव अ फीडबैक कि सर कई वायर जो थी कंडम हुई हैं, 2 हमने कंडम की हैं, 3 इस बारी कंडम की हैं, तो भैया 3 नहीं बनाओ, या एटलीस्ट 10-12 तो स्पेयर हम वैसे ऑलरेडी बना के ही रखते हैं, कि बना के भी रखनी जो चाहिए हो। राउंड बकल्स भी हो सकता है बेंड हो जाए, कम पड़ जाए, घूम कहीं ना कहीं पानी में भी गिर जाते हैं। नाउ यू इमेजिन, ये तो लोडिंग के टाइम में हो गया, अब जब डिस्चार्जिंग होगी यही सारा मटेरियल खुलेगा, तो who's going to take care? You think stevedores, they just throw everything. So this becomes an additional big job on these ships. If you see, यार सारा जो है मटेरियल उसको ठीक से रखना, उसको करना, प्लस सेकंड थिंग यू नो द इंस्पेक्शंस, कोई ना कोई इंस्पेक्टर चला रहेगा, हाँ जी इसका सर्टिफिकेट दिखाओ, ये वायर्स ठीक हैं, ये ठीक हैं, शैकल्स ठीक हैं, बट मोस्टली those guys are good. Canada, New Zealand, I don't know, I used to load New Zealand, so 6-7 months I did, तो कोई प्रॉब्लम नहीं फेस की। बेसिकली क्रू भी है वो भी ट्रेंड हो जाता है इसी मटेरियल में, एंड सम टाइम चार्टर्स एंड ऑल दे गिव सम मनी ऑल्सो कि हाँ भाई ठीक है, हैच क्लीनिंग, लैशिंग सब कुछ कर रहा है, तो उससे भी क्रू का थोड़ी सी मोटिवेशन रहती है, तो इन दैट प्रीटेक्स्ट ऑल्सो दे वर्क लिटिल एक्स्ट्रा, एंड वो काम अच्छा कर लेते हैं। बट ये है कि हमारे लेवल पे प्लानिंग जहाँ तक लैशिंग एंड सिक्योरिंग्स आर कंसर्न, कि यार इसका मैंने ध्यान देना, एंड देन चलो आज आपका आई थिंक 1 आवर या 1 आवर सेशन है हो। तो नेक्स्ट पे लेंगे थ्योरी की, कि थ्योरेटिकली अगर आपको आंसर करना है, क्वेश्चंस को आंसर करना है, या लिटिल बिट और क्या क्या हमने इसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। दिस वाज जस्ट टू गिव यू आई थिंक लिटिल व्यू और एक विजन कि हाँ यार टिम्बर कैरियर कुछ नहीं है, नॉर्मल हैंडी साइज बल्क कैरियर, ठीक है डेक कार्गो है थोड़ा सा, एंड यू कैन आंसर द क्वेश्चंस कि हाउ दिस कार्गो इज टू बी सिक्योर्ड, एंड उसके बाद फिर अगेन आपके लेवल पे, चीफ ऑफिसर मास्टर के लेवल पे क्या है, क्या इमरजेंसीज, क्या इन केस द शिप डेवलप्स अ लिस्ट और प्लानिंग, और अगर आपको एट एनी स्टेज अगर कार्गो को जेटिशन करना है, या कार्गो लैशिंग ब्रेक होती है, या कार्गो जाता है, तब क्या एक्शन लेंगे। सो अदरवाइज it's not so, I mean there's nothing so special about the timber carriers to worry about, ठीक है सर नॉर्मल शिप है। अब हम भी कार्गो चाहे बल्क लोड करें, अब ये भी वी कैन से दिस इज ऑल्सो लाइक अ बल्क कार्गो, ठीक है, लॉग्स हैं बड़े बड़े, वही नीचे होल्ड में लोड कर रहे, तो आपका एक थोड़ा सा ये जिसे कहते हैं ना, आई वांट टू बिल्ड अप एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ यार कुछ नहीं है, नॉर्मल कार्गो है, एंड दीज आर द एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड फॉर दिस कार्गो सिक्योरिंग। थोड़ी सी टिपिकल है, जैसे आपने देख लिया कार्गो की हाइट कैसे है, प्लस मेन एम ये कि एक्सट्रीम का कार्गो है, जो एक्सट्रीम के ये लॉग्स हैं, अब ये तो है नहीं, अब हम यहाँ पे भी देखेंगे इनकी स्पेसिंग क्या कहती है, जब हम थ्योरी पढ़ेंगे तो रूल रेगुलेशन आ जाएंगे कि टिम्बर कोड कहता है क्या है। एक सिंपल है कि यार ये जो लैशिंग है इनकी स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, अप टू व्हाट हाइट वी कैन लोड कार्गो। So these are the few things which we will say. Stability as usual, कि ठीक है लिटिल केयरफुल कि हाँ यार जो ये कार्गो है, जैसे आपने ठीक कहा कि ये स्नो, बारिश, पानी, एंड आपने देखा है यार लॉट ऑफ ये जो क्रेन हाउसेस हैं, अब यहाँ पे भी बीच में स्पेस होगी, अब अगर बारिश आती है, स्प्रे आता है, तो वो पानी को निकलने का रास्ता बहुत कम होता है, बिकॉज आपने पूरा कार्गो तो पूरी डेक तो कार्गो से भर दी, तो पानी का एग्जिट नहीं है, तो यू विल फाइंड सम यू नो वाटर गेटिंग ट्रैप्ड, तो वो भी एक एक्स्ट्रा वेट क्रिएट करेगा। तो यही चीज़ इसकी प्रिकॉशंस में कहता है कि अगर आपने इतना समझ लिया है तो फिर ठीक है सर, पानी को निकालते रहेंगे, बर्फ़ पड़ी है तो उसको भी देखते कितना, स्नो एंड आइस के लिए तो सब शिप्स आर वल्नरेबल, इवन कंटेनर्स आर मोर वर्स्ट, उनकी भी स्टेबिलिटी इफेक्ट होती है कि व्हेन दे गो टू द हायर लैटिट्यूड्स, कोल्ड क्लाइमेट में जाएंगे, तो उन पे भी स्नो एंड आइस फॉर्मेशन, आइस एक्यूमुलेशन जो है डेंजरस है। सो दैट्स ऑल वी हैव। चलो ठीक है, तो आज के लिए हाँ जी सर ये चेन ब्लॉक्स है ना लगे विगल वायर के साथ, ये चेन ऊपर की तरफ चेन ब्लॉक्स ही है ना। These are not chain blocks, these are the snatch blocks. Snatch block क्या होता है? स्नैच ब्लॉक्स। या स्नैच ब्लॉक को अभी जैसे ये मैंने वायर का लूप डालना है, मैंने ये वायर रिग कर दी है, तो सपोज आई वांट टू पुट दिस, तो
दिस इज अ वेरी लॉन्ग वायर, तो हम एक एक के थ्रू इसका एंड ऐसे तो भर नहीं सकते। स्नैच ब्लॉक क्या होता है, आप इसको खोल सकते हो, आपने खोला, ये वायर डाली और वापस इसको ऊपर से बंद कर दिया, पिन टाइप होता है यहाँ। I'll show you in the ओके next. सर। I'll show you how this snatch block तो looks like. सर ये जो होग लैशिंग होती है ये डेक कार्गो जो होती है उसके हाफ पे होती है, Half हाफ height. ऑफ द डेक कार्गो, Yeah, half height. हाफ ऑफ द डेक कार्गो। Yeah. ओके सर। You can put two wires also. एक हॉग वायर, अगर आपको हाइट लगता है ज़्यादा, कई बार हो सकता है अकोमोडेशन ऊपर हाइट ज़्यादा है, तो दे विल गिव यू इन योर CSM, आपके कार्गो स्क्योरिंग मैनुअल में आ जाएगा। यू कैन पुट टू हॉग वायर्स ऑल्सो, एक नीचे डाल दी, फिर एक ऊपर डाल दी, फिर कार्गो। तो दिस इज बेसिकली जो हाफ हाइट पे है, अंदर है कार्गो, उसको ऊपर है। हॉग वायर का पर्पस क्या है, बेसिकली सिक्योरिंग पोर्ट एंड स्टार्बोर्ड अपराइट्स को आपस में ज्वाइन कर रही है, ताकि इसके ऊपर जो स्ट्रेस आ रहा है वो इधर भी ट्रांसफर हो जाए। दैट्स ऑल। थैंक यू। चलो ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही। तो